नमस्कार। इस वक्त केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम को मुंबई में संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। 5 prestigious global universities: University of York, University of Aberdeen from UK, University of Western Australia, Illinois Institute of Technology, the Institute Europea di Design, IED, Italy, marks the continuity of global education in India. With this, Mumbai takes its place among global knowledge capital. Maharashtra has been a leader of enterprise and intellect for long, and it is now ready to lead in education sector. Mumbai Edu City, being envisioned by Sri Fadnavis at Navi Mumbai, is not just a physical campus, it is an idea, a bridge between Indian aspiration and global excellence. This initiative revisits our glorious history and legacy. When most of the world had yet to achieve excellence in education, India had already built Takshashila, Nalanda and Pushpagiri and Vikramshila, global university of that time, attracting scholars from across the globe. Today, we honor that civilizational spirit not by replicating brick and mortar structures, but by reimagining the idea of India as a global set of learning. We are reclaiming our place by leading through innovations, wisdom, and global collaboration rooted in India's timeless values. We are witnessing a global transformation in education. According to 2024 Stanford AI Index, India ranks among the top 3 countries globally in AI skill penetration and AI-related research output. According to Australian Strategic Policy Institute, a critical technology tracker, India now ranks among the top 5 countries in 45 out of 64 critical technologies, with major advances in fields like biological manufacturing and distributed ledger technologies. In Global Innovation Index, India's position is 39th from 81st in 2015. Today, India accounts for nearly 50% of all digital payments globally, with more than 18 billion digital transactions logged in the last month itself. We rank number 1 in global fintech adoption at a rate of 87%. India today stands tall as the world's 4th largest economy and a rising knowledge superpower. This is why the world is looking at India not just as a destination but as a knowledge partner. This is India's moment. We are not just inviting foreign universities, we are co-creating ecosystem of innovation, entrepreneurship and research. The National Education Policy 2020 laid the foundation of this shift. It is committed to internationalization of Indian education, not as an afterthought but as a policy. NEP 2020 envisioned India as a global study destination, encouraging top international universities to establish campus here with empowering Indian institutions to expand globally. This vision is not just about access, it is about making premium global education available at an affordable price. We are not just inviting the world to India, we are offering the best of India to the world. We aim to realize Honorable Prime Minister Modi's vision of positioning India as a global knowledge destination. We have simplified the regulations. We are enabling joint degrees, dual and twinning programs, academic credit mobility, and institutional autonomy. Our approach is clear, open, inclusive, ambitious, and confident. We wish to be future ready. And we have been encouraging signals. University of Southampton, UK is ready to begin classes in Gurgaon campus next month. We have also issued letter of intent to the University of Liverpool to set up a campus in Bengaluru last month. 2 Australian universities, Deakin and Wollongong, are already operational in GIFT City, Gujarat. At the same time, leading Indian institutions are going global. IIT Madras in Zanzibar, IIT Delhi in Abu Dhabi, and IIM Ahmedabad and IEFT expanding into Dubai. Many more Indian universities are going overseas. This reflects a growing two-way movement of ideas, talent and trust. India is not just participating in global education ecosystem, we are shaping it. And today,
We are honored to welcome 5 more institutions to the global repute in this journey. Each brings with it a legacy of academic excellence, a culture of innovation, and a spirit of collaboration. Whether it is design and creativity, artificial intelligence, business and entrepreneurship, or environmental science, these universities will offer Indian students and education of global standards right here at home at affordable cost. This move will also allow international students to come and experience India. Its diversity, dynamism, deep civilizational roots, and above all, learn in an environment that is both globally ambitious and deeply rooted in Indian values. As we look ahead, I see Mumbai, especially Edu City in Navi Mumbai, emerging as a city where finance and technology meet education and research. Global minds meet Indians' roots and standards students become leaders not just in India but also the world. India, home to the world's largest youth population, holds immense potential for growth and transformation. We have 300 million students with 40 million in higher education. Over the last 10 years, we have added 490 universities and 8,100 colleges. Our gross enrollment ratio in higher education is all set to record for substantial rise with a vision of go to 50% by 2035. We are not just consuming technology, we are creating it. We are not just exporting talents, we are nurturing at scale. But beyond the numbers lies a simple truth. Our students are not waiting for opportunity, they are ready for it. What they need are lunch packs. तो भारत को वैश्विक शिक्षा का हब कैसे बनाया जाए, इस दिशा में आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को लेटर ऑफ इंटेंट देने का काम किया गया और इसके जरिए वो 5 विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं वो अब भारत में अपने कैंपस खोलेंगे और फिर यहाँ के जो बच्चे हैं वो उससे अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो एक तरह से भारत को जो शिक्षा का हब है वो कैसे बनाया जाए, इस दिशा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में पीएम साइप्रस गणराज्य जाएंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। पीएम वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम के इस सम्मेलन में ये लगातार 6ठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया गणराज्य पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का ये पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेस प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। बारह जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के क्रैश होने के बाद से इसकी जांच का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर चाहे वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत हो रही जांच हो या सरकार की तरफ से उठाए गए तमाम उपायों की बात। इस बीच आज नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हवाई सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। नागरिक उड्डयन सचिव, डीजीसीए के महानिदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस बैठक में हवाई सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत हो रही है। और अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच और तेज हो गई है। इस हादसे की जांच की कमान भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम के हाथों में है। इसके साथ ही जांच के लिए सिविल एविएशन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है। उच्च स्तरीय कमेटी दुर्घटना के मूल कारणों का पता लगाएगी। ये यांत्रिक विफलताओं, मानवीय भूल, मौसम की स्थिति, विनियामक अनुपालन और अन्य कारणों सहित और दूसरे कारकों का भी आकलन करेगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश और इसके लिए उपयुक्त SOP तैयार करने पर उच्च स्तरीय समिति का फोकस रहेगा। SOP के इसके लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तरीके भी शामिल किए जाएंगे। जांच में अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB सहयोग कर रहा है, तो वहीं ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की भी मदद ली जा रही है।
विमान हादसे के 28 घंटे के भीतर एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया। नागर विमानन मंत्रालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बताया कि ब्लैक बॉक्स को दुर्घटना स्थल की एक इमारत की छत से बरामद किया गया, जहां हादसे के समय विमान टकराया था। नागरिक उड्डयन मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ब्लैक बॉक्स में मौजूद तकनीकी जानकारी और उड़ान से जुड़े डेटा की मदद से हादसे के कारणों की गहराई से जांच की जाएगी। और वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि गांधीनगर में गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक साइंस की टीम लगातार विमान हादसे के पीड़ित सभी परिवारों के DNA सैंपलिंग का काम कर रही है। उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था। फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के DNA मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स हैं वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजकोट में आधे दिन के लिए बाजार को बंद रखा गया है। विजय रूपाणी 2016 में गुजरात के CM बने थे और 2021 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनके निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया। विजय रूपाणी के कार्यकाल में गुजरात में विकास के कई बड़े काम हुए। अहमदाबाद के मेघानी नगर में जिस हॉस्टल से प्लेन टकराया था, हॉस्पिटल के पीछे की सोसाइटी के प्रत्यक्षदर्शियों से DD न्यूज़ ने बातचीत की, जिसमें एक युवक ने बताया कि हादसे के समय वो अपनी छत पर अपनी पत्नी के साथ था। प्लेन पहले पेड़ और एक पोल से टकराता हुआ हॉस्टल से टकरा गया। इसके अलावा कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने भी ये दावा किया कि उन्होंने विमान हादसे में फंसे लोगों की जान बचाई। अहमदाबाद के मेघानी नगर में इस समय हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखलाना चाहूँगा सामने प्लेन के पीछे का हिस्सा। आप देख सकते हैं कि प्लेन का वो पीछे का हिस्सा बिल्डिंग से जब टकराया तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनी। अभी भी वहाँ पर NDRF की टीम आपको नज़र आ रही होगी, बाकी भी लोग वहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और मलबे को हटाने का काम चल रहा है। जब ये हादसा हुआ तब मैं और मेरी वाइफ टेरेस पे ही थे और जब देखा हमने तो प्लेन एकदम हमारे ऊपर से निकला और इतनी तेज हवा थी तो हवा की वजह से मेरी वाइफ तो नीचे गिर भी गई। और जैसे प्लेन आगे बढ़ा तो फर्स्ट वो एक पेड़ से टकरा। पेड़ से टकराने के बाद वो जो स्टूडेंट क्वार्टर्स है वहाँ कैंटीन है उसके ऊपर जाके गिरा और जाके हुआ तो बहुत बड़ा फ्लैश हुआ। फ्लैश इतना बड़ा था ना तो उसका फ्लैश 1 किलोमीटर के अंतर में दिखने लगा और धुआं तो इतना काला धुआं था ना, मंजर ही बहुत भयानक था। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं कि पेड़ के देखिए कुछ हिस्से नीचे पड़े हुए हैं टूटकर और साथ में पेड़ के अलावा एक वहाँ पर लोहे का वो क्या बना हुआ है जो लोहे का पोल था, वो एयर पोल था। आप देख सकते हैं कि वो विमान की जो पूंछ है वो आपको नजर आ रही होगी जहाँ पर वो टकराई थी। जब मैं खाना खा के TV देख रहा था और विमान की आवाज़ आई, जैसे आकाश जो बिजली पड़ती है ना, ऐसी आवाज़ आई थी विमान की। तो विमान हमने देखा के बाद एकदम नीचे था विमान, हमारे ब्लॉक से एकदम छूने वाला था। तो वैसे हम देखते देखते वहाँ जाके क्रैश हो गया। जो धड़का वहाँ पे तो हमने भाग के वहाँ गए तो बहुत बड़ी आग लगी थी और आग चालू थी। कितने लोगों की आपने जान बचाई? 7 से 8 लड़कों की जान बचाई है। हमारा 9-10 लोगों का ग्रुप था। ये मेघानी नगर गुजरात हाउसिंग बोर्ड बोलते हैं। हम लोगों ने पहले धमाके की आवाज़ सुनी तभी हम भाग के उधर चले गए। ये गुजरात हाउसिंग बोर्ड के सारे गार्डन के, राजेंद्र पार्क गार्डन के नियर बाई जो भी लड़के थे हम सब भागे उधर और मेज के ऊपर जितने भी लड़के थे ना तभी हम ऊपर गए। लड़के बोल रहे थे हमको बचाओ। फिर हम ऊपर गए और ऊपर जाके बहुत बड़ी बड़ी पिल्लर ऊपर पड़ी थी। फिर हमने नीचे से दूरी रस्सी मंगा के पिल्लर को बांधा और खींच के पिल्लर के नीचे से लोगों का रेस्क्यू किया।
प्रत्यक्षदर्शियों को का जो कहना है, इन्होंने लोगों की जान भी बचाई और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना भयंकर हादसा हुआ था। और ये तमाम आपको एक बार मैं सोसाइटी दिखाना चाहता हूँ। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार ये सोसाइटी जो है वो दिखाएं, कितनी पास था इस हॉस्टल के ये सोसाइटी। और यहाँ के जितने युवा थे वो जान बचाने के लिए उन लोगों की भागे और युवाओं ने जो कोशिश की उससे कई सारे लोगों की जान बच गई। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। दूसरी अहम खबरें, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने एक बड़ा पलटवार किया है। ईरान ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि 100 से ज्यादा मिसाइलें इजरायल के अलग अलग शहरों की तरफ दागी गईं। इस हमले के बाद पूरे इजरायल में एयर रेड सायरन बजने लगे और यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई शहरों में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बताया कि इजरायल में मिसाइल हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजाए गए और नागरिकों को शेल्टरों में रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बचाव दल ने इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं 34 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर बताया कि ईरान की तरफ से आने वाले ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। वहीं ईरान ने पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में फोर्डो परमाणु संयंत्र को कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायल के खिलाफ हमले वो जारी रहेंगे। और इस सब के बीच ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ बातचीत को अर्थहीन, व्यर्थ बताया है। ईरान ने अमेरिका पर इजरायल के हमलों में शामिल होने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली हमला वाशिंगटन की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। वहीं अमेरिका ने ईरान के आरोपों का खंडन किया। अमेरिका ने कहा है कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। और यहां रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इजरायल में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इजरायल में सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जाती है। एडवाइजरी में सावधानी बरतने के साथ देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा आश्रयों के निकट रहने का मशवरा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सहित उभरती स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति में दूतावास की 24 घंटे हेल्पलाइन खुली हुई है, जिस पर संपर्क करने की भी सलाह दी गई है। संपर्क के लिए ईमेल आईडी cons1.telaviv@mea.gov.in भी दी गई है। ईरान में भी भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। भारतीय दूतावास ने कहा है कि जिन्हें मदद की जरूरत है वे ईरान में भारतीय दूतावासों के आपातकालीन नंबर +98 9128 1091115 और +98 9128 1091109 पर संपर्क कर सकते हैं। बात योग की करें तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट 2025 वैश्विक योग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती भी पहुंचे। आयुष मंत्री ने कहा कि योग कई बीमारियों से बेहतर तरीके से निपटने में कारगर है। यही वजह कि दुनिया भर में योगाचार्य की मांग बढ़ रही है। हमारे अध्ययनों से पता चलता है कि योग
डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। योग सिर्फ आध्यात्मिक और ध्यान का ही अभ्यास नहीं है जो स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्तियों के कौशल्य में भी सुधार करता है और इस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी प्रदान करता है, क्योंकि दुनिया भर में प्रशिक्षित योगाचार्य की मांग बढ़ रही है और जिसके लिए हमें प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। और आगे बढ़ें तो तूतीकोरिन से जो खबर आ रही है योगा को लेकर उसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले तमिलनाडु के तूतीकोड़ी जिले के महिला शिक्षा महाविद्यालय की छात्राओं ने एक योग शिविर का आयोजन किया। महिलाओं के लिए योग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मुथुनगर समुद्र तट पर 1 घंटे तक योग किया गया। योग शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करने का एक तरीका है। कॉलेज की छात्राओं ने प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, क्रिया योग, अष्टांग नमस्कार, विक्रम योग जैसे विभिन्न आसन किए। इस मौके पर योग साधक सुकन्या राजावेल का कहना है कि योग महिलाओं को स्वस्थ रहने में बहुत लाभ पहुंचाता है। इस आधुनिक युग में प्रत्येक महिला को इसे अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित हिजबुत तहरीर से संबंधित आतंकी साजिश मामले में आज मध्य प्रदेश के भोपाल और राजस्थान के झालावाड़ में कई स्थानों पर तलाशी ली। भोपाल में 3 और झालावाड़ में 2 लोकेशन पर यह तलाशी अभियान चलाया गया। एचयूटी और उसके सदस्यों पर आतंकी गतिविधि में शामिल होने के मामले में एनआईए की जारी जांच के तहत ये कार्रवाई की गई है। एनआईए की टीमों ने तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइस जब्त की और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। कमजोर मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने के हिजबुत तहरीर की साजिश थी। साजिश के तहत युवाओं को भारत के लोकतंत्र के खिलाफ हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस मामले में एनआईए की जांच जारी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर ओबीसी सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी 3 दिनों के भीतर देने की मांग की है। एनसीबीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा है कि दिनांक 22 दिसंबर 2023 को दिए गए नोटिस के पिछले उत्तरों और दिनांक 19 फरवरी 2024 के आपके पत्र के संदर्भ में, जिसमें सूचना प्रदान करने के लिए 3 से 6 महीने की समय सीमा मांगी गई थी, 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आवश्यक जानकारी अभी भी लंबित है। एनसीबीसी ने लिखा कि संज्ञान में आया है कि विस्तृत सर्वे के आधार पर 27 मई 2025 और 3 जून 2025 की अधिसूचनाओं के माध्यम से पश्चिम बंगाल की राज्य ओबीसी सूची में कई जातियों को उपवर्गीकृत और अधिसूचित किया गया है। अधिसूचनाएं ये बताती हैं कि यह अभ्यास विस्तृत सर्वे पर किए गए हैं। सर्वे के लिए प्रोफार्मा की एक प्रति भी संलग्न की गई है। आयोग ने लिखा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग चाहता है कि पश्चिम बंगाल राज्य आयोग की सिफारिशों के साथ साथ सर्वे रिपोर्ट, विशेष रूप से प्रोफार्मा के बिंदु संख्या 13C, 13D और 19A से संबंधित जानकारी सभी सहायक दस्तावेजों के साथ 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए। ममता बनर्जी सरकार द्वारा एक कथित सर्वे के बाद ओबीसी सूची में अतिरिक्त जातियों को, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम जातियां हैं, शामिल करने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह पत्र लिखा है। खबर खेल जगत से है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 282 रनों का टारगेट दिया है। तीसरे दिन ताज़ा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 188 रन बना लिए थे। दूसरी पारी में अफ्रीकी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रायन रिकेल्टन को 6 रन पर स्टार्क ने पवेलियन भेजकर टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद एडन मार्क्रम और कप्तान टेम्बा बामुमा ने पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। एडन मार्क्रम 91 और कप्तान टेम्बा बामुमा 53 रन पर खेल रहे थे। दोनों शतकीय साझेदार कर चुके हैं। रायन रिकेल्टन 6 रन और वियान मुल्डर 27 रन बनाकर आउट हुए। दोनों को मिचेल स्टार्क ने पवेलियन भेजा। इससे पहले दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट गंवाकर 144 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की जुझारू पारी की बदौलत टीम 200 का आंकड़ा पार करने में सफल हुई। स्टार्क 58 रन बनाकर नाबाद लौटे। उन्होंने 10वें विकेट के लिए जोश हेजलवुड के साथ 59 रन की साझेदारी की। वहीं एलेक्स कैरी ने 43 रन और मार्नस लेबुशन ने 22 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की ओर से कगिसो रबाडा को 4, लुंगी एनगिडी को 3 विकेट मिले।
वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान पैट कमिंस ने 28 रन देकर 6 विकेट लिए। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।